ایسی تاثیر ہے جو دن ب دن لوگوں کو جلا کر مار رہی ہے۔ حسد ایک ایسا زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے، توقع جو ہے وہ دوسرے کے مرنے کی کرتا ہے۔ حسد جو ہے یہ ایک موذی مرض ہے۔ آج دنیا کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کے اندر جیلسی اسپرٹ پائی جاتی ہے، حسد کی اسپرٹ، چاہے وہ بڑے بڑے عالم ہیں، چاہے وہ بڑے دیندار ہیں، چاہے وہ جو ہے بڑا علم رکھتے ہیں، لیکن یہ تاثیر ایسی ہے کہ ہر شخص کے اندر کام کر رہی ہے۔ ہم کسی کی کامیابی کو دیکھ کر جل جاتے ہیں، ہم کسی کو ترقی کرتا ہوا دیکھ کر جل جاتے ہیں۔ اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہے، یہ حسد کی اسپرٹ جو بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور آج پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں جو ہے وہ لے رکھا ہے۔ آج ہم ایماندار ہوتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس اسپرٹ سے کیسے بچنا۔ اگر ہم ایماندار ہیں، اگر ہم راست باز ہیں، اگر ہم خدا کے لوگ ہیں، خدا کی بیٹیاں اور بیٹے ہیں، تو کیا یہ جو مرض ہے کیا اس سے آج ہم بچ رہے ہیں؟ کیونکہ حسد ایک بدترین بیماری ہے، یہ ایسا دیمک ہے جو اندر سے لوگوں کو جو ہے وہ کھا رہا، اور آج ہمیں اس جیلسی اسپرٹ سے بچنا ہے۔ اکثر ہم کہتے ہیں کسی نے دیکھ کر دعا دی اور کوئی دیکھ کر جل گیا۔ دعا دینے والے بہت ہی کم لوگ ہیں، جلنے والے زیادہ ہیں۔ وہ جلنے والے جو ہیں وہ زیادہ ہیں، وہ ساری زندگی سڑ سڑ کے مرتے رہتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے، کیونکہ ابلیس نے، شیطان نے ان کی ڈیوٹی لگا دی، ان کی ذمہ داری لگا دی ہے بھی تیرا کام ہے بس سڑنا۔ آپ کے اندر اگر لکڑی کو رکھ دیں تو کیا کرتی لکڑی؟ جلتی رہتی ہے۔ لیکن والے ہاتھ سیک رہے ہیں، وہ جل رہی ہے۔ تو جو ترقی کرنے والے وہ کر رہے ہیں، جو آگے بڑھنے والے وہ بڑھ رہے ہیں، خوشحالی آ رہی ہے، لیکن جو جیلسی اسپرٹ ہے وہ ان کے اندر کام کر رہی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، ایک بادشاہ نے اپنے دربار کے اندر ایک ایسے نیک شخص کو رکھ لیا جو اس کو ہر روز نصیحت کرتا تھا۔ نصیحت کرنے کے لیے اس نے اس کو اپنے دربار میں رکھا، اور وہ ہر روز بادشاہ کو ایک نصیحت کیا کرتا تھا، اور وہ بادشاہ سے کہتا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ ان کی اچھائی کی وجہ سے اچھا سلوک کرو، کیونکہ برے لوگوں کے لیے ان کی برائی ہی کافی ہے۔ اب جب وہ بادشاہ کو نصیحتیں کرتا تو اس نے بادشاہ کا دل جیت لیا تھا۔ بادشاہ ہر وقت اس کے گن گاتا، اس کی تعریف کرتا، لیکن جو بادشاہ کا مشیر تھا وہ اندر سے جلتا رہتا تھا۔ وہ کہتا تھا میں بڑے سالوں سے بادشاہ کے پاس ہوں، یہ بھی چند مہینے ہوئے اس نے بادشاہ کا دل جیت لیا ہے۔ اس نے کہا کیوں نہ میں کوئی ایسا پلان کروں کہ بادشاہ سے نفرت کرنے لگ جائے، بادشاہ جو ہے اس سے نفرت کھانا شروع ہو جائے۔ اس نے بادشاہ کے آہستہ آہستہ کان بھرنے شروع کر دیے، اور بادشاہ کو جو ہے اس نیک شخص کے پاس ساتھ جو نصیحتیں کرتا تھا اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی کہ بادشاہ وہ تو آپ سے جو ہے اس نے مجھے کہا ہے کہ جب میں بادشاہ کے پاس جاتا ہوں تو بادشاہ کے منہ سے جو ہے وہ اسمیل آتی ہے، اور میں اپنا ہاتھ جو ہے اپنے منہ پر رکھ لیتا ہوں۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں بادشاہ ہوں اور اس شخص نے میرے بارے میں یہ کہا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کو جو ہے میرے دربار میں پیش کرو، میں جان لوں گا کہ واقعی وہ ایسا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ مشیر نے جو ہے اس نیک شخص کو اپنے گھر میں دعوت دی، اس کو کھانے پر بلایا، اس کو کھانا کھلایا، اس کو جو ہے پھر لہسن پیاز بھی کھلایا تاکہ اس کے منہ سے اسمیل آنا شروع ہو جائے۔ اس کے بعد پھر اس کو وہ بادشاہ کے پاس لے گیا۔ اب جب وہ بادشاہ کے پاس اس کو لے گیا تو جو نصیحت پذیر شخص تھا، نیک انسان، وہ بادشاہ کے پاس جب گیا تو اس نے کہا تو یہ تو بادشاہ سلامت ہے، بادشاہ ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا اور میرے منہ سے اسمیل آ رہی ہے تو یہ بادشاہ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا، اس نے جو ہے اپنے
मुंह के ऊपर हाथ रख लिया ताकि बादशाह को जो है वो बदबू जो है वो ना आए। बादशाह ने जब देखा तो बादशाह जो है वो बड़े गुस्से हुआ, नाराज हुआ और उसने कहा कि मेरे मशीर ने बिल्कुल दुरुस्त जो है वो फरमाया। उसने कहा कि इस नेक शख्स को जो है जरूर जो है वो सजा दी जाएगी। उसने एक खत लिखा और खत के अंदर लिखा था कि जैसे तुम इस खत को पढ़ो इसकी खाल उधेड़ देना और इसकी खाल जो है उधेड़ कर मेरे पास जो भेज देना। और अब वो खत लिखकर उस नेक शख्स को दे दिया गया कि जाकर ये खत जो है तुमने जो है आगे पहुंचा देना। अब जब वो दरबार से खत लेकर निकला तो वो जो मशीर था उसने कहा कि ये खत लेकर कहां पर जा रहे हो? उसने कहा कि मुझे बादशाह ने खत दिया है कि ये खत मैं वजीर खजाना के पास जो है वो लेकर चला जाऊं। मशीर बड़ा हैरान होता है कि जब वजीर खजाना के पास ये खत जाता है तो इनाम का नाम मिलता है। उसने कहा ये खत मुझे दे दो, मैं खुद ही जो है वजीर खजाना तक जो है पहुंचा दूंगा, तुम रहने दो। अब वो जिसने ये चाल चली होती है वो खत लेकर जो है वो वजीर खजाना के पास चला जाता है और उस खत को पढ़ते हैं तो उस मशीर को जो है वो बांध दिया जाता है। वो कहता है मुझे क्यों बांधा है? और वजीर कहता है कि ये बादशाह की तरफ से हुक्म जारी हुआ है कि जैसे तुम इस खत को पढ़ोगे इसकी खाल उधेड़ कर मेरे पास भेज देना, इसलिए अब तुम जो है वाजिबुल कत्ल हो, तुम्हें कत्ल किया जाएगा और तुम्हारी खाल जो है वो बादशाह के पास भेज दी जाएगी। वो वहां पर बड़ी मिन्नतें करते हैं कि ये खत मेरे लिए नहीं था, ये तो उस नेक शख्स के लिए था, मैं उससे खत लेकर आपके पास जो है वो पहुंच गया हूं। तो वजीर खजाना ने कहा कि हमें ये बादशाह की तरफ से ऑर्डर हुआ है, खत हमने तेरे हाथ से लिया है, अब तू ही जो है वो सजा के लायक है। और उसको जो है वो सजा दी जाती है और उसकी खाल जो है बादशाह के पास भेज दी जाती है। और जब नेक शख्स जो है बादशाह की हुजूरी में आता है तो बादशाह देखकर हैरान रह जाता है कि मैंने तो खत तेरे हाथ में भेजा था और ये खाल जो है अब ये मशीर की आ गई है। तो ये सारी बात जो बादशाह को बताता है और बादशाह सुनकर बड़ा हैरान होता है। वो कहता है बादशाह मैं आपसे अक्सर कहा करता था कि अच्छे लोगों के साथ उनकी अच्छाई की वजह से अच्छा सलूक करो, क्योंकि बुरे लोगों के लिए उनकी बुराई ही काफी है। तो जो उसने जाल मेरे लिए बुना था वो जाल में खुद ही फंस गया, जो उसने गड़ा मेरे लिए खोदा था वो उसी में जो है वो खुद जो है वो गिर गया है। तो आज ये जलन की जो स्पिरिट है, ये जेलसी स्पिरिट, किसी का कुछ नहीं जाता, हम अपना ही खून जो है वो कम कर रहे होते हैं। किसी का कुछ नहीं जाता, हम अपना ही बीपी हाई कर रहे होते हैं। किसी का कुछ नहीं जाता, हम अपने ही जो है वो ब्लड प्रेशर को, अपनी शुगर को बढ़ा रहे होते हैं। तो इसलिए हसद जो है ये दीमक की तरह लोगों को चाट रही है। हसद जो है ये ऐसा जहर है जिसे इंसान खुद पीता है और तवक्को जो है वो दूसरे के मरने की करता है। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने इस स्पिरिट से जो है वो बचना है। द स्पिरिट ऑफ जेलसी जो है आज हर खानदान के अंदर जो है वो पाई जा रही है। आप अगर किसी को मिलते हैं तो दिल से उसको दुआ दें। दुआ देना आपका काम है, बरकत देना खुदा का काम है। वो खुदा दे रहे, आप उसकी बरकत को छीन नहीं सकते, आप उसकी कामयाबी को छीन नहीं सकते, आप उसकी खुशहाली को छीन नहीं सकते, तो फिर जलने का क्या फायदा। और अक्सर कभी गाड़ियों के पीछे आप लिखा हुआ आपको नजर आएगा, वहां पर क्या लिखा आता है, जलने वाले का मुंह। तो ये ऑपोजिट जेलसी के ऊपर आता है। तो इसलिए हमने जलना नहीं, हमने खुश होना है, अगले के बंदे के लिए जो वो दुआ करनी है। आइए कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे, मेरे साथ पैदाइश की किताब निकालिए, पैदाइश की किताब और उसका 37वां बाब है और उसकी 11 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है हसद जब शुरू हुआ और उसके भाइयों को उससे हसद हो गया
लेकिन उसके बाप ने ये बात याद रखी। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं खुदा के कलाम मुकद्दस में पैदाइश की किताब 37वां बाब और उसकी 11 आयत। यहाँ पर जब यूसुफ ने ख्वाब देखा और वो ख्वाब अपने भाइयों को बताया, अपने बाप को बताया, तो यहाँ पर 11वीं आयत में लिखा है और उसके भाइयों को उससे हसद हो गया, लेकिन उसके बाप ने यह बात याद रखी। अब उसके भाई भी हसद से भर गए। द स्पिरिट ऑफ जेलसी उनके अंदर आ गई कि हमारा भाई तरक्की कर जाएगा, हमारा भाई आगे बढ़ जाएगा, हमारा भाई आने वाले वक्त में मिस्र का हाकिम होगा। और यहां पर लिखा है कि वो हसद से भर गए। यहां पर हमें हसद की स्पिरिट नजर आ रही है पैदाइश की किताब में कि उसके भाई जो वो हसद से जो वो भर गए। और आज ये हसद जो है, और हसद की वजह से उन्होंने क्या किया, उनको जो है अपने भाई को बेच दिया। हसद की वजह से वो अपने भाई के खिलाफ हो गए। आज भी दुनिया के अंदर हसद की वजह से जो है भाई भाइयों के खिलाफ है, खानदान के खानदान एक दूसरे के खिलाफ है। लेकिन आपके हसद करने से किसी को कोई नुकसान नहीं है। ये नुकसान आपका है क्योंकि आप हसद कर रहे हैं। ये तासीर आपके अंदर काम कर रही है। वो आपसे ज्यादा क्वालिफाइड है, हसद करने की जरूरत नहीं है। वो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो आपसे ज्यादा खुशहाल है, वो आपसे ज्यादा जो है वो साहिब हैसियत है, तो फिर हसद करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आप हसद करेंगे तो ये मर्ज आपको लग जाएगा। वो अगला बंदा तरक्की करता जाएगा और आप जो है अंदर धंसते चले जाएंगे। आप इस मर्ज में मुतला हो जाएंगे और जो गड्ढा आप दूसरे के लिए खोद रहे हैं, आप उसमें खुद ही जो है वो धंसते चले जाएंगे। तो इसलिए आज हमने इस हसद की स्पिरिट से जो बचना है। जब हम देखते हैं कायन और हाबिल को, तो जब कायन और हाबिल ने कुर्बानी गुजरानी तो खुदा ने हाबिल की कुर्बानी को कबूल किया और कायन की कुर्बानी को कबूल ना किया। तो वहां पर कायन भी अपने भाई के खिलाफ हो गया। वो भी अपने भाई से जो नफरत करने लग गया, वो भी हसद से भर दिया गया। और क्या किया, उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। इस हसद की वजह से, इस जो है नफरत की वजह से। और वहां पर हमें पहला कत्ल जो है वो हमें पैदाइश की किताब में नजर आता है, कायन और हाबिल की। जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं वहां पर भी हसद हमें जो है वो नजर आता है। आज ये हसद जो है ये कईयों को बर्बाद कर देता है। ये हसद जो है लोगों की जान जो वो लेकर छोड़ता है। और ये तासीर आज बड़ी तेजी के साथ लोगों के अंदर काम कर रही है। आज हमारे दिल से किसी के लिए दुआ नहीं निकलती। हम जल कर जो है वो भस्म हो जाते, लेकिन दिल से दुआ नहीं करते किसी के लिए। अगर खुदा ने इसको दिया है तो आप खुदा से मांगे। खुदा सबका है, वो नेको और बदो दोनों पर अपना मींह बरसाता है। वो नेको और बदो दोनों पर अपना सूरज चमकाता है। अगर खुदा ने उसको दिया, आप भी खुदा से मांगे और हमेशा जो है खुदा की शुक्रगुजारी किया करें, क्योंकि आज हमने इस हसद से जो है वो बचना है। और एक और हवाला हम देखेंगे, ज़बूर की किताब मेरे साथ निकालिए, ज़बूर 106 और हम उसकी जो है 16वीं आयत और 17वीं 18वीं आयत को पढ़ेंगे। उन्होंने खेमा गांव में मूसा पर और खुदावंद के मुकद्दस मर्द हारून पर हसद किया, सो जमीन फटी और दातन को निगल गई और अब्राम की जमात को खा गई। आमीन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में, जब आप गिनती की किताब को पढ़ें तो गिनती की किताब के अंदर हमें यह वाकया नजर आता है। और यहाँ पर कलाम मुकद्दस में लिखा है ज़बूर 106 उसकी 16वीं आयत में, उन्होंने खेमा गाह पर मूसा पर और खुदावंद के मुकद्दस मर्द हारून पर हसद किया। खुदा का नबी है मूसा और हारून जो मर्द खुदा है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदावंद के मुकद्दस मर्द हारून पर हसद किया। अब हसद करने वाले कौन हैं? और लिखा है सो जमीन फटी और दातन को निगल गई
اور ابیرام کی جماعت کو کھا گئی. یہ حسد کرنے والے یہ خدا کے لوگوں کے خلاف ہو گئے, خدا کے مقدسوں کے خلاف ہو گئے, ان سے حسد کرنا شروع کر دیا. وہ خدا کا نبی, خدا کا پیغمبر, جس سے خدا روبرو باتیں کرتا, جس کے ساتھ خدا جو ہے وہ گفتگو کرتا, جس کے ساتھ خدا بات چیت کرتا, اور جس کو خدا نے اپنے احکامات دیے, اب یہ شخص جو ہے یہ اسی کے خلاف ہو گیا. اور کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ سو زمین پھٹ گئی اور داتن کو نکل گئی, زمین دو ٹکڑے ہو گئی اور اس کا سارا خاندان اس کے اندر بھسم ہو گیا. حسد کی وجہ سے انہوں نے اپنی جانوں کو گوا لیا. اور حسد وہ کس سے کر رہے ہیں؟ خدا کے لوگوں کے ساتھ, خدا کے نبی کے ساتھ, خدا کے پیغمبر کے ساتھ, خدا کے جو ہے وہ مرد خدا ہارون کے ساتھ وہ حسد کرنا شروع کر دیا اور زمین پھٹ گئی. کیونکہ جب ہم حسد کرتے ہیں تو زمین ہمارے لیے ہی پھٹ جاتی ہے, اور انہوں نے یہی کیا اور زمین پھٹ گئی اور اس کے اندر غرق ہو گئے, تباہ ہو گئے. آج جو اسپرٹ آف جیلسی ہے وہ تباہی اور بربادی کا نشان ہے. ہم کسی کو اگر دعا نہیں دے سکتے تو پھر بد دعا بھی مت دیں. ہم جو ہے جلے بھی نہ, جب یہ جلن ہمارے اندر آتی ہے تو پھر زمین ہمارے لیے پھٹنا شروع ہو جاتی ہے. اور آج اسی بات کو ہم نہیں سمجھتے. آج کیوں ہم مشکلات کا شکار ہیں, کیوں بیماریوں کا شکار ہیں, کیوں کرائسس کے اندر ہم چلے جاتے ہیں؟ شاید یہ تاثیر ہمارے اندر کام کر رہی ہے, یا تاثیر جو دیمک کی طرح ہمیں خراب کر رہی ہے. شاید ہم کسی کے لیے ہمارے دل سے برکت کی دعا نہیں نکلتی ہے, ہم کسی کو دل سے دعا نہیں دیتے ہیں, یا ہم شاید کسی کی کامیابی پر جلتے ہیں. ہم کہتے ہیں لو میرے کو تو ماڑا یا کہا رہے, دیکھو ایڈا بڑا کہا رہے. یہ حسد کی سپرٹ آپ کے اندر کام کر رہی ہے, یہ حسد کی سپرٹ کام کر رہی ہے. لہسی تو کامیاب نہیں ہو سکے, وہ نہ کامیاب ہو گئے. یہ حسد کی تاثیر آپ کو کہلوا رہی ہے, اور آپ اسی وجہ سے پرابلم کے اندر ہیں, آپ اسی وجہ سے اس موذی مرض کا شکار ہیں, کیونکہ یہ تاثیر آپ کے اندر کام کر رہی ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں داتن ابیرام کو, اور جب انہوں نے حسد کیا خدا کے لوگوں کے خلاف تو زمین پھٹ گئی, زمین کے اندر جو ہے یہ دھس گئے, کیونکہ انہوں نے حسد کیا تھا. اور آج میرے عزیزو ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. آج اگر ہم خدا کے لوگ ہیں, خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, تو زندگی میں کبھی حسد نہیں کرنا, اور جس دن یہ تاثیر آپ کے اندر آ گئی آپ ناکام ہو جائیں گے, آپ جو ہے مشکلات کا شکار ہو جائیں گے. کیونکہ یہ حسد کی سپرٹ جو ہے, the jealousy of spirit جو ہے آپ کے اندر کام کرے. جیلسی کی سپرٹ جو ہے یہ دیمک کی طرح آج لوگوں کو جو ہے وہ کھا رہی ہے, اور جو دوسروں کے لیے جو ہے وہ گڑھا کھودتے ہیں وہ اس میں خود جو ہے وہ گر جاتے ہیں. تو حسد جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. کاش کہ آج لوگ سمجھ جائیں کہ یہ گناہ ہے, یہ خدا کو ناراض کرتا ہے, یہ جو ہے خدا اس کو پسند نہیں کرتا. تو ہم زندگی میں کبھی حسد ہی نہ کریں. ہم اور بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ خدا یسوع مسیح نے کیا فرمایا؟ اپنے دشمنوں کے لیے بھی کیا کرو؟ دعا کرو. دشمنوں کے لیے بھی. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑا مکاشفہ ہے کہ دشمنوں کے لیے بھی دعا کرو, ان کے لیے برکت چاہو, خدا آپ کو برکت دے گا, آسمان آپ کے لیے کھل جائے گا. لیکن آپ حسد کرتے رہیں گے, وہ تو بڑی چنگی روٹی کھاندے رہیں, یہ بھی حسد کی سپرٹ ہے. بعض کا ہمارا دھیان لوگوں کی روٹیوں کی طرف بھی ہوتا ہے. یہ حسد کی تاثیر ہے جو آپ کے اندر کام کر رہی ہے. بات چوسی آپ روٹی تو وادار ہو جانے, خدا ان کو اچھی روٹی دے رہا ہے, ہماری نگاہیں ان کی روٹی کی طرف ہے, ہماری نگاہیں ان کی اچھی پوشاک کی طرف ہے, ہماری نگاہیں ان کی وہ صاحب حیثیت ان کی طرف ہے. آپ خدا کی طرف نگاہیں کیوں نہیں لگاتے؟ جب آپ خدا کی طرف نگاہیں لگائیں گے خدا آپ کو بھی برکتوں سے بھرنا جو وہ شروع کر دے گا. آئیے ایک اور حوالہ دیکھیے, امثال کی کتاب 14واں باب اور اس کی 30 آیت کو پڑھیے. یہاں پر کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ 30 آیت کو 30 آیت. مطمئن دل جسم کی جان ہے لیکن حسد ہڈیوں کی پوسیدگی ہے. آمین. یہاں پر امثال کی کتاب میں لکھا ہے
मुतमईन दिल जिस्म की जान है, लेकिन हसद हड्डियों की बोसीदगी है। हड्डियों की बोसीदगी है, हड्डियों को नकारा कर देती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। आज अक्सर बहुत सारे लोग हैं जिनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं या हड्डियों का मर्ज लग जाता है, तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है मुतमईन दिल जिस्म की जान है, लेकिन हसद हड्डियों की बोसीदगी है। आपकी हड्डियां नकारा हो जाती हैं, आपकी हड्डियां जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, क्योंकि ये सब कुछ जो है वो हसद की वजह से है। द स्पिरिट ऑफ जेलसी, जिसकी वजह से इंसान नकारा हो जाता है। और आज हमने देखना है कि क्या ये दीमक कहीं हमें तो नहीं लग गया। अगर लग गया तो उसको फेंक दीजिए, उसको दूर कीजिए खुदा के नाम से, ताकि खुदा आपको बरकत दे, आपको सरफराज करे, खुदा आपको खुशहाली दे और आप खुदा के जलाल में जो आगे बढ़ते जाएं। आज हमने जो है इस हसद से जो है वो बचना है और खुदा से कहना है कि खुदा ये हसद की तासीर, ये हसद की स्पिरिट हमारी जिंदगियों से जो है वो जाती रहे। एक और हवाला देखिए मेरे साथ, पहला कुरिन्थियों 3 बाब उसकी 3 आयत को। यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है? 3 बाब 3 आयत। यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में इनके अभी तक जिस्मानी हो, इसलिए कि जब तुम में हसद और झगड़ा है तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए और इंसानी तरीक पर ना चले। आमीन। यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में लिखा है क्योंकि अभी तक जिस्मानी हो, इसलिए कि जब तुम्हें हसद और झगड़ा है तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए और इंसानी तारीख पर ना चले। यहाँ पर मुक़द्दस पौलुस जो है कुरिन्थुस की कलीसिया को यह लिखते हैं कि अभी तक तुम जिस्मानी हो। हम कहते हैं जी हम बड़े रूहानी हैं, हम बड़ी दुआ करते हैं, बड़ा कलाम पढ़ते हैं, हम तो बड़े आलम हैं, हमें बड़ा इल्म है, लेकिन अंदर से हम हसद से भरे हुए। हसद की तासीर जो है हमारे अंदर काम कर रही है। तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है तुम अभी तक जिस्मानी हो, आप रूहानी नहीं है, जिस्मानी है, क्योंकि ये तासीर जो है हमारे अंदर जो है वो काम कर रही है। मूसी मर्द जो है, आज बेशुमार ऐसे मर्ज जो है वो लगे हुए हैं। हम कहते हैं जी बेशुमार वबाएं हैं, बेशुमार मूसी मर्द जो है इस दुनिया के अंदर है जो लोगों को हलाक कर रहे हैं। तो इसके अंदर द जेलसी ऑफ स्पिरिट जो है, द स्पिरिट ऑफ जेलसी, ये भी एक मर्ज है, ये मूसी मर्द है जो हर इंसान को लग गया। हर इंसान इसकी लपेट के अंदर है, हर इंसान को ये दीमक की तरह खा रहा है। हम जो है हसद से भर जाते हैं किसी की कामयाबी को देखकर, किसी को जो है किसी ने अगर कोई बाइक ले ली है, गाड़ी ले ली है, हम हसद से भर जाते हैं। किसी ने अच्छा घर ले लिया है, हम हसद से भर जाते हैं। और हम देखते कोई अच्छा पढ़ लिख जाता है, हम हसद से भर जाते हैं। हसद की तासीर हमारे अंदर जो वो काम जो है वो कर रही है। तो इसलिए खुदा का कलाम जो है आज हमें ये नसीहत करता है कि इस हसद को, इस दीमक को, इस मूसी मर्द को हमने अपनी जिंदगियों से दूर रखना। अगर आप चाहते हैं कि आप खुशहाल रहें, आप चाहते हैं कि आपके घरानों के अंदर खुदा की बरकत हो, तो इस तासीर को हमेशा अपनी जिंदगी से दूर रखिए। हमेशा दूसरों के लिए दुआ करें, दूसरों के लिए बरकत चाहें कि खुदा उनके वसीला से हमें भी दे। ये सबसे अच्छी बात है जब आप ये कहते हैं खुदा उनके वसीला से हमें भी दे, हमें भी बरकत दे, हमें भी खुदा तो खुशहाली से नवाज, और खुदा का जलाल जो है हमारी जिंदगियों में कसरत के साथ जो है वो ज़ाहिर होगा। एक और आखिरी हवाला हम देखेंगे, याकूब का खत है 3 बाब, याकूब का खत 3 बाब और उसकी जो है 14 और 15 को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में लिखा है 3 बाब 14 और 15। लेकिन अगर तुम अपने दिल में सख्त हसद और तफरके रखते हो तो हक के खिलाफ ना शेकी मारो ना झूठ बोलो। ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से उतरती है, बल्कि दुनियावी और नफसानी और शैतानी है। आमीन। यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में पढ़ा है, लेकिन अगर तुम दिल में हसद, सख्त हसद
और तफरके रखते हो तो हक के खिलाफ ना शोखी मारो ना झूठ बोलो। ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से उतरती है, बल्कि दुनियावी और नफसानी और शैतानी है। क्या है? शैतानी है। तो जब ये जलन आपके अंदर आ जाती है तो ये शैतानी है। शैतान आपको उकसाता है, वो आपको उभारता है और आप जो है द स्पिरिट ऑफ जेलसी से भर जाते हैं। हसद की रूह आपके अंदर काम करना शुरू कर देती है और आप अपना ही नुकसान जो वो करना शुरू कर देते हैं। अगले बंदे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, फर्क आपको पड़ रहा है। नुकसान आप अपना कर रहे हैं, ये जहर आप खुद पी रहे हैं, आप खुद जब घुट घुट कर मर रहे हैं, अगले बंदे को कोई नुकसान नहीं है। इसलिए अगर आप बरकत पाना चाहते हैं तो फिर इस जलन को, इस तासीर को अपनी जिंदगियों से निकाल दीजिए। ये हसद की स्पिरिट जो है इसको अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। ये मूजी मर्द जो है, जो आपको जो है बीमार कर रहा है, ये मूजी मर्द जो है ये आपको तबाही की तरफ लेकर जा रहा है, इसको अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दीजिए। क्योंकि खुदा नहीं चाहता, खुदा के लोग जलते नहीं हैं, खुदा के लोग दुआ देते हैं, चाहे उनके कोई दुश्मनी क्यों ना हो। खुदा के लोग दूसरों के लिए दुआएं खैर करते हैं, वो खैर की दुआ मांगते हैं। ये खुदा के लोगों की पहचान है, वो दूसरों के लिए बरकत चाहते हैं। और आज इस दुनिया में रहते हुए हमने इस मर्ज से बचना, हमने इस तासीर से जो बचना। अगर हम गिनती की किताब को पढ़ते हैं, वहां पर खुदा के लोग, खुदा के नबी मूसा और काहिन हारून पर जब दातो नबी राम ने हसद किया तो क्या हुआ? जमीन फट गई, जमीन के अंदर चले गए। और जब यूसुफ के भाइयों ने उसे हसद किया, यूसुफ मिस्र का हाकिम बन गया, वो वहीं के वहीं रह गए। खुदा जब किसी को बरकत देता है तो बरकत खुदा की तरफ से। हम किसी की बरकत को छीन नहीं सकते, हम किसी की कामयाबी को छीन नहीं सकते, हम किसी की सरफराजी को छीन नहीं सकते, हम किसी की जो है जिंदगी को छीन नहीं सकते। ये सब कुछ खुदा की तरफ से है। और इसलिए हमें दूसरों के लिए जो है वो दुआएं खैर बनना है, उनके लिए बरकत की दुआ करनी है। जब आप दूसरों के लिए बरकत चाहेंगे, बरकत आपके ऊपर आ जाएगी, खुदा आपको बरकत दे देगा। जब आप दूसरों को देकर खुश होंगे, खुदा आपकी जिंदगी में खुशी दे देगा। लेकिन आप दूसरों को दे देकर अगर जल रहे हैं तो फिर सारी जिंदगी फिर हम जलते ही रहते हैं, वो खुशहाली हमारे पास नहीं आती। और आज मेरे अजीजों, हमें इस बात पर गौर करना है कि ये द स्पिरिट ऑफ जेलसी जो है ये हमारी जिंदगियों में नजर ना आए। इसको हमेशा जब आने की कोशिश करे तो इसे यीशु के नाम से दूर कीजिए, खुदा के नाम से। और अपनी लाइफ को ऐसा बनाइए कि वाकई खुदा की बरकतें, खुदा का जलाल हम आपकी जिंदगियों पर हमेशा जो है वो ठहरा रहे और आप खुदा के लोग बन जाए, खुदा के बेटे और बेटियां बन जाए। तो आज जब हम किसी के लिए गड़ा खोदेंगे, याद रखिए वो गड़ा आपके लिए ही तैयार है। आप किसी को बद्दुआ देंगे, वो बद्दुआ आप ही को लगेगी। आप किसी को देखकर जलेंगे, वो आप ही जो है कोयलों की तरह जलते रहेंगे, अगले बंदे को कोई नुकसान नहीं है। तो इसलिए अपनी लाइफ को ऐसा बनाइए कि खुदा आपको भी बरकत दे, खुदा आपको भी खुशहाली दे, खुदा आपके लिए भी अपने आसमान को खोले और आप भी उसकी बरकतों से भर जाएं और खुदा का जलाल हमेशा जो है आपकी जिंदगी पर छाया रहे। सो हम अपने सरों को झुकाएंगे, खुदा का शुक्र अदा करेंगे।